جناب عزت مآب چیئرمین صاحب کو آپ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے نصیحت آموز باتیں ہو جائے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی اپنے مدرسے کی زندگی میں اس کو اپنا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے جو آگے کے جو مراحل ہیں آگے کے جو راستے ہیں اس پر چلنا آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج مدرسہ فوکل ٹیچرز ٹریننگ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے شروع کیا گیا ہے، اس میں آپ فوکل ٹیچر کے مدرسہ فوکل ٹیچر کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں. آپ سب قابل محترم ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے چل کے پٹنہ تشریف لائے اور اس میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے 15 سالہ دور اقتدار میں بہار میں انصاف کے ساتھ ترقی کا جو نعرہ دیا ہے وہ 100% اپنے جگہ پر مکمل ہے. انہی کے کاوشوں اور کوششوں سے آج بہار کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے. بہار کے ہر طبقے کو اوپر اٹھنے کا، بڑھنے کا، ترقی کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ترقی دکھ نہیں رہا ہو. بہت سے لوگوں کو ترقی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں، جو حق وہ ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ 70 برسوں میں کیا ہوا اور 15 سال میں کیا ہوا. سڑکوں کو لے لیجئے، آج سواستھ کے لے لیجئے، آج تعلیم کو لے لیجئے، کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیے، ہر شعبہ زندگی میں انقلاب نظر آ رہا ہے. اور خاص طور سے مدارس جو دین کی احیا کے لیے اسلامی شعار کا مرکز ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. آپ مدرسے یا جو بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے، اس کی تاریخ 100 سالہ تاریخ ہے. 1921 میں بہار میں مدرسوں کا قیام عمل میں آیا تھا. ہم 100 سال پورا کرنے جا رہے ہیں. 100 سال میں کیا ہوا اور 15 سال میں کیا ہوا اس NDA سرکار میں. 100 سال میں تقریباً 15 سال کم کر لیجئے تو یہاں پر 1127 مدرسے تھے، اور آج نتیش کمار نے اپنے 15 سالوں دور حکومت میں 2459 مدرسوں کو کیبنٹ کے ذریعے منظوری دیا، اور اس میں 814 کو پیسے مل گئے ہیں. تقریباً 850 مدارس ایسے ہیں جس کی انکوائری ہو کر DO کے یہاں سے آ گئی ہے. کچھ محکمہ کے جو افسران ہیں ان کے داؤ پیچ میں وہ پھنسا ہوا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ بہار نے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تمام مدرسوں کو ہم پیسے دیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد میں امید کرتا ہوں کہ وہ مدارس بھی گرانٹ کے زمرے میں شامل ہوں گے، اور یہ انقلاب آیا ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں کہ 2015 میں جب نتیش کمار تشریف فرما ہوئے وزیر اعلیٰ کے حیثیت سے اپنے منصب پر فائز ہوئے، اس وقت مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں 8 سے 10 کے اندر میں تھی، اور ہمارے نئے جو مدارس 814 والے ہیں ان کی تنخواہیں ابھی 10,000 تھی. اور اس 15 سالہ دور میں مدارس کا اساتذہ کو انہی کے دور میں 6ٹھی شرح تنخواہ، 7ویں شرح تنخواہ دی گئی، اور نئے مدارس کو بھی جو لوگ ہمارے 814 کے مدارس کے اساتذہ ہیں ان کو بھی اسکولوں کے مساوی تنخواہ دے دی گئی. اور آج تک ہمارے مدارس کے اساتذہ پینشن سے محروم تھے. چناؤ سے پہلے جناب نتیش کمار جی نے EPF اسکیم لاگو کیا ہے، اور مدرسوں کے اساتذہ کو بھی اسکولوں کے مطابق EPF اسکیم دیا جائے گا، پینشن دیے جائیں گے. اور اس میں کیبنٹ نے تو فیصلہ کیا کہ سبھی مدرسوں کو دیے جائیں گے، لیکن محکمہ کے افسر ہیں جنہوں نے غلط ڈھنگ سے لیٹر جاری کر دیا کہ یہ 11 کے بعد ملیں گے، پہلے کے نہیں، جبکہ کیبنٹ نے سبھی مدارس کے اساتذہ کے لیے لاگو کیا ہے. میں اس کے لیے خط لکھا ہوں، بہت جلد اس میں اصلاح کر لی جائے گی. یہ مدارس جو آپ محسوس کرتے ہوں گے، جب اسکولی سسٹم ہے تو مدرسے کیوں قائم کیے گئے؟ مدرسوں کا قیام کا مقصد یہ تھا، ہندوستان کے آئین کے 28 میں لکھا گیا ہے کہ کسی سرکاری اداروں میں، اسکولوں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب حکومت میں
दिल्ली में भी हुकूमत है, बिहार में भी है, लेकिन कहीं पर मजहबी तालीम किसी मजहब की, इस्लाम की नहीं, हिंदू मजहब की, सिख की, जैन की, किसी की तालीम नहीं दी जाएगी। इसीलिए बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के आइन 29 और 30 के तहत अपने मर्जी के मुताबिक स्कूल खोलने चलाने का हक दिया गया। और 28(2)A में लिखा गया है कि अगर कोई इदारा सरकारी ग्रांट लेता है, अगर ट्रस्ट के अंडर में होगा तो मजहबी तालीम दे सकता है। इसीलिए आज पूरे बिहार में मदारिस कायम किए गए और जहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शामिल किया गया, ताकि बच्चे तालीम हासिल करके बेकार न हो जाएं, रोजी रोटी हासिल कर सके मजहबी तालीम के साथ। इसीलिए आज ये सब काम किए गए। और आज इस प्रोग्राम में आप तशरीफ फरमा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, आफात मैनेजमेंट, इसके चेयरमैन जनाब नीतीश कुमार जी हैं वज़ीर आला के साथ साथ, और इसके वाइस चेयरमैन ब्याज जी हैं, और इसके स्टेट अफसर जो हमारे पल्लव जी हैं। इन लोगों ने मेरे चेयरमैन बनने के बाद, जैसा इन्होंने बताया, ये लोग रब्ता किए और इन्होंने कहा कि मदरसों में भी ये स्कीम लागू किया जाए, और हमने एग्रीमेंट किया और उसके तहत इंशाअल्लाह 1 साल से करीब हम लोग इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो तमाम इंसानियत के लिए है, तमाम दुनिया में जितने भी लोग बस रहे हैं उसके भलाई के लिए। आप महसूस कर रहे होंगे कि अभी आप 2 दिन जब ट्रेनिंग लेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हम क्या जान रहे थे और क्या नहीं जान रहे थे। और दुनिया में सबसे अहम काम भलाई का काम है, लोगों के भलाई का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुन नास मयनफउन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों की नफर रसानी का काम करे, लोगों की भलाई का काम करे। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना यही सबसे ऊंचा अमल है। ये अमल तो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। हम नमाज पढ़ के, रोज़ा रख कर और इस्लामी शार में रह के कोई कमाल का काम नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया, और वह इबादत का काम ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कमाल नहीं है हमने नमाज पढ़ दिया। जैसे सांस लेना कमाल नहीं है, जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह से पैदा हुए हैं इस्लामी शार को अपनाना और इस्लामी शरीयत को ज़िंदगी में लाना ये लाजिम है, ज़रूरी है। अगर कोई नहीं करता है तो अल्लाह का मुनकिर है वो, और अल्लाह के अहकाम से लड़ाई लड़ रहा अल्लाह से, ये जान ली। ये जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, हमने इस्लाम कबूल किया। और आप बता दें कि ये भलाई का काम, ये सोक्रेट जो दुनिया का सबसे पहला टीचर सोक्रेट थे, जिन्होंने ईसा मसीह से 250 साल पहले, बहुत बड़ा फिलोसफर, साइंस का जनक कहा जाए, उन लोगों ने ही साइंस की शुरुआत की, खोज किया और तर्क से ज़िंदगी को साबित किया, ईश्वर को साबित किया कि है कि नहीं। हम हर बात को एक्सपेरिमेंट से आंख बंद करके नहीं मानना है, हमें तहकीक करना है कि अल्लाह है कि नहीं है। हम उसको परखेंगे और तब मानेंगे, तो यकीन के साथ मानेंगे। और कहा सुनी से मान लिया तो कभी भी मुतजलजल हो जाएंगे। तो सोक्रेट ने कहा कि 2 चीज़ें अगर इंसान के जहन में है, इंसान की ज़िंदगी में है, तो वो कामयाब है। एक है कि खुदगर्जी ज़िंदगी से ना हो, हम जो भी काम करें लोगों के भलाई के लिए करें। हम ये काम नहीं करेंगे इसे क्या मिलेगा, जब ये सोच लिया तो हम अपने काम को नहीं कर सकते, हर बात में सोचेंगे क्या मिलेगा। तो सोक्रेट ने कहा कि खुदगर्जी से ज़िंदगी को पाक किया जाए। दूसरी बात उसने कही, मोरल वैल्यूज, अखलाकी कदरें। अखलाकी कदर का क्या माना है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात उसने ईसा मसीह से कही थी, अखलाकी कदरों को कुरान ने 1400 साल पहले कहा, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक वाला, अच्छे कैरेक्टर वाला बना। ये अल्लाह के रसूल को लक़ब अल्लाह ने दिया, अखलाक। नमाज वाला बनाया नहीं कहा, रोज़ा वाला बनाया नहीं कहा, हज वाला, ज़कात नहीं, अखलाक। ये मामला लोगों से है। नमाज रोज़ा तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो मेरा मामला है, नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के दुनिया में भी मातूब करेगा और आखिरत में भी करेगा, अल्लाह के हुक्म नहीं मानेंगे। लेकिन ये मेरा मामला है। और हम मुंह से गलत बोलते हैं,
لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں. اور ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ جسم جو ہے اور روح دو چیزیں ہیں. زندگی کا کیا حصہ ہے؟ دو. ایک ہے روح ہے اور دوسرا جسم ہے. جسم فانی ہے اور روح لا فانی ہے. تو ہم نے اس روح کو تکلیف پہنچایا. اللہ کا اس میں جز ہے، روح کو فنا نہیں، روح کو بقائے دوام حاصل ہے. اور اسلامی نہیں کہتا ہے. ہندو دھرم کا جو گیتا ہے اور اس میں اس کے جو کرشن جو ہے اس کے پورا اس کے جنم داتا ہے، اس کے لکھنے والے ہیں، بتانے والے ہیں. تو اس نے کہا کہ منش کا دو انگ ہے، ایک شریر ہے اور ایک روح ہے. یہ شریر نشور ہے اور آتما انشور ہے. ہندو کا بھی ہو، مسلمان کا بھی ہو، آپ دیکھیے گا ویسے ہی جسم باقی رہ جاتا ہے. روح نکلنے کے بعد حرکت ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان کے اندر دو چیزیں. اور میں بتا دوں کہ زندگی کے اندر جو سب سے اہم کام ہے دنیا میں وہ علم ہے. علم کے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے. دنیا میں جینا بیکار ہے. اور اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور پہلی جو وحی نازل کیا، بلکہ وہ پہلا حکم نازل کیا اقرا، پڑھنے کا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا، پڑھنے کا، پڑھو. یہ امر کا صیغہ ہے. حکم نازل ہوا، وہی ہم کہتے ہیں، بلکہ حکم، پہلا حکم اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا اقرا کا، پڑھنے کا. اور یہی نہیں، آج کے اس سے 6000 سال پہلے وید، جیسے اسلام میں قرآن متبرک ہے، اسی طرح سے ہندو دھرم میں سب سے متبرک کتاب کوئی ہے اور وہی وہ الہامی کتاب کا یہ ایشور کی طرف سے دیا گیا، وہ کتاب ہے وید. آج لوگوں نے نہیں سمجھا. وید کا معنی کیا ہے؟ وید معنی ودیا، علم. اس کتاب کا نام، اس دھرم 6000 سے پہلے جس پاک کتاب کا نام ودیا رکھا گیا، وید. سائنس، گیان، اس کتاب 6000 سال پہلے وید. اور اس میں جو ایشور کا کنسپٹ پیش کیا، ودیا کیا ہوا؟ وہ ایسی کتابیں جو الہامی کتاب ہیں، وہ کبھی کاٹا نہیں جا سکتی بات. تو اس کے 4 وید ہیں. اس کا رگ وید میں ایشور کا کنسپٹ بتایا گیا ہے، ایک ہی آستی دوتیہ ناستی ناستی ناستی. ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ اسلام میں ہی اللہ ایک ہے، ہندو دھرم میں بھی اللہ ایک کہا، بھلے ہی آپ مت پڑھیے اس. ایک خدا، اور اس کو کوئی نہیں دنیا میں کاٹ سکتا ہے. دنیا کا خالق مالک ایک ہے. ہم بول لگاتے ہیں، اندر میں بات نہیں بنی. اب بولیے ایک خدا، تو کس نے اس ہندو دھرم میں، اور ہندو دھرم کو آپ بہت ہی نیچا دیکھتے ہیں. مسلمانوں کا کنسپٹ ہے، آپ گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا. ہندو دھرم نے بھی 6000 سال پہلے، ہم تو 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، 6000 سال پہلے جس نے ایشور کا کہا. اور ہندو دھرم کا کنسپٹ کیا ہے؟ ہری کتھا، ہری انت کتھا. جو اس کی شروع نہیں ہے، جو انت نہیں ہے. کیا کہتا ہے ہندو دھرم؟ ایسا خدا کا شروع اور انت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ آپ اپنے تک محدود ہو کہ تمام دھرموں کو نکار دیا، تمام دھرموں کو پورا سمجھ لیا. نہیں، ہر دھرم میں سچائی ہے. ماننے والے بھٹک گئے. ہم ہی اسلام کے ماننے والے ہیں. کتنے لوگ قبروں کو پوجا کر رہے ہیں، کتنے لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، عملی طور پر نہیں مانتے. اگر مانتے تو اس کا ایک ایک عمل زندگی میں ہوتا، اور نماز والے ہوتے، روزہ والے، حج والے، زکوٰۃ والے، اور لوگوں سے اچھا تعلقات کرنے والے ہوتے. یہ معاملہ ہے. صرف مذہب مان کے ہم اپنے کو کنسنٹریٹ کر لیں. اور آج اس کے ذریعے کیا سبق دی جا رہی ہے کہ آپ ٹریننگ لے کے جائیں گے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ لے کے جائیں گے، تو کوئی بھی ہوگا اس دیش کا ناگرک ہوگا، اس کو بچائیں گے. جانور کو بھی بچائیں گے. انسانیت کی سبق لے کر جا رہے ہیں یہ ٹریننگ. اور دینے والی کون ہے؟ سرکار ہے. اور اس کا مینجمنٹ جناب نتیش کمار وزیر اعلیٰ نے کئی کروڑ روپے خرچ کیے ہیں آپ کے اوپر. یہ جو خرچ ہو رہا ہے سرکار نے دیا. یہ انسانیت کی سیوا ہے. اپنے کو محدود مت رکھیے. ہم تمام انسانیت کے لے کے بات کریں گے. اللہ کے رسول نے کو کیا کہا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। जो भी अंबिया है, जो भी प्रोफेट लिकुल कौमिन हाद, हिंदू धर्म के राम का महान आदमी, तो हिंदू धर्म के लिए वो तो बन रखे, हमें बुरा नहीं करना। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, जितने पैगंबर आए सब काबिल मोहतरम, उनके मानने वाले भटक गए, उनके मानने वालों ने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन जो भी आया आज बेदकाट है कि नहीं। और इतना ही नहीं, हम गीता की बात करते हैं, आप सिर्फ कुरान तक महदूद हैं। गीता जो वेद के बाद सबसे महत्वपूर्ण बुक है, हिंदू धर्म का महान बुक मानिए उस गीता, जिसमें कहा गया कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप ट्रेनिंग में आएंगे, क्या मिलेगा जानिएगा तो नई ट्रेनिंग कीजिएगा। हमें ट्रेनिंग करना है, हमें पहुंचाना है, और उसका फल अल्लाह देगा जो होना है वो। पहले ही आपने अगर सोच लिया कि इस ट्रेनिंग से क्या मिलेगा, तो आप क्या ट्रेनिंग कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये बात गीता जैसा महान ग्रंथ, हमने तो महदूद अपने को कुरान तक कर ले, जरा थोड़ा बढ़िए आगे ना भाई। जब ये बढ़ेंगे तो नफरतें जो हम पैदा किए हैं, हमने पैदा किया। हमारे हिंदू भाई बहुत सहनशील हैं, बहुत हो। आपके लिए हमारे पल्लव जी सरकारी योजनाएं कैसे चलती हैं, देखिए ना पूरे बिहार में क्या हो रहा है, कौन पूछता है। और ये डिजास्टर्स के हमारे ब्याज जी हैं, हमारे वज़ीर आला हैं, आप पल्लव जी स्टेट अफसर है, आपके खाने के लिए अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, आपके ठहरने का अच्छा इंतजाम, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। कौन कर रहा है? ये तो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। काहे के लिए? मुसलमान के लिए करेंगे, लेकिन इंसानियत के लिए कर रहे हैं। मुसलमान हिंदू के लिए नहीं कर रहे हैं, इंसानियत। ये धर्म, परो धर्म जो है सबसे ऊंचा धर्म इंसानियत का है। ये सबक लेना और हमको कंसेप्ट को बदलना है। और तमाम धर्मों का साधक, देखिए नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ऐसे वज़ीर आला बिहार हैं कि जिन्होंने सब धर्मों को रेस्पेक्ट दिया। सिख की आबादी बिहार में कितनी है, उनका बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, 350वां। जैन धर्म का बौद्ध का बड़ा सर्किट बनवाया। इस्लाम धर्म के जितने भी खानकाएं हैं सबको 10-10, 20-20 करोड़ रुपया देकर बनाया। ये होता है शासक जो तमाम के बारे में सोचे, अपने बारे में मत सोचे। और नीतीश जी ने गांधी जी का जो स्लोगन दिया कि अपने खुदगर्जी को, लालच को हटाइए। कहते हैं नीतीश जी कि कफन में पॉकेट नहीं है, पैसा कितना चाहिए, और दुनिया में आपकी जरूरत पूरी की जा सकती है, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। इसलिए हम सब उम्मीद करते हैं कि अभी जो आप तशरीफ लाए, आप एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जाना है। और ये अच्छाई फैलाने के लिए, हक के लिए कोशिश करनी पड़ती है और जान की भी बाजी लगानी पड़ती है। सोक्रेट ने, एथेंस का मजहब था मूर्ति पूजा का, और उसके वालिद भी मूर्ति बनाने वाले थे, सोक्रेट के वालिद, उसमें भी वो काम बटाता था। लेकिन तहकीक किया कि हमारा बनाया हुआ चीज़ खुदा नहीं हो सकता है। उसने, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, फिलोसफर था, गौर फिक्र करके कहा कि नहीं, इस दुनिया का खालिक कोई है, एक है, ये नहीं हो सकते। जब ये कहा तो उस पर मुकदमा चलाया गया और कहा गया कि अपनी बात को बदल दिए। कहा कि मैं तो समझ चुका हूँ, मैं बदलना नहीं वाला, मैं तो तहकीक करता हूँ। वो नहीं बदला, उसकी सज़ा हुई जेल। और कहा गया, सज़ा में कहा गया कि आपको जहर दे के मारा जाएगा। उसने एक्सेप्ट किया। उसका दोस्त था क्रिएटर, उसने कहा उसको कि आप ऐसा कीजिए कि हम आपको जेल के गेट तोड़ देते हैं। बहुत पैसा वाला था दोस्त उसका, कहा कि हम तोड़वा देते हैं, आप निकल जाइए। कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आने वाले लोग कहेंगे कि इस मुल्क का कानून तोड़कर सोक्रेट भाग गया। ये नहीं हो सकता, ये मोरल वैल्यूज। और उसको जहर का प्याला दिया गया और दुनिया से चला गया, लेकिन समझौता नहीं। तो जो काम करने वाले लोग हैं, आप आए हैं मदरसों में, आपको एक यूनिट मदरसा दिया गया है। उस मदरसे में वो बच्चे आपके लिए बहुत ही मोहतरम हैं, उनके लिए पूरी तवानाई और कोशिश करनी है कि तालीम एक ऐसा मार्ग ये है। सोक्रेट ने कहा था, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्ग वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा जरिया है जो पूरे समाज को, पूरे मुल्क को बदल सकता है। इल्म ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गुर्बत हटाने के लिए, अंधविश्वास हटाने के लिए एक ये इल्म, और इल्म फैलाने वाले आप लोग हैं। और आज ये डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो बिहार सरकार ने मदरसों में देकर मदरसों पर एहसान किया है,
मैं नीतीश कुमार का फिर से और व्यास जी और हम पल्लव जी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस स्कीम को मदरसों में लाकर जो हमारे मदरसे का असातिज़ा के दिमाग जो है जमूद और तात्तुल का शिकार हो गया था, समाज से कट गए थे। देखिए कहते हैं मेन स्ट्रीम में लाना, क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपने बस अपने मजहब तक ही रख दिया, वो बढ़िए ऊपर। आज साइंसी खोज के जरिए एक अल्लाह को हम साबित करेंगे। आज ये बात करते हैं ना कि एक अल्लाह, कैसे एक अल्लाह है, कैसे मान लिया जाए? और जब हम नहीं देखते हैं तो कैसे मान लिया जाए? तो साइंस जो है हर चीज को जांचता परखता है, और उसके लिए कुरान ने क्लियर कट बता दिया कि पूरे संसार का खालिक, पूरे संसार का खालिक और मालिक एक है, और सूरज, चाँद, जमीन, आसमान ये उसी ने पैदा किया है। और उसके पैदा करने के लिए इसलिए साबित है कि कोई दूसरा दावेदार हुआ दुनिया में अभी तक 7 चांद मैंने बना दिए। हवाई जहाज बनाने वाला, टेलीफोन बनाने वाला, रेल बनाने वाले का तो नाम साइंस में है। किसी साइंसदान का नाम बताइए जिसने कहा हो कि मैंने सूरज बना दिया, मैंने चांद बना दिया, मैंने जमीन और पहाड़ और समंदर बना दिया, बता दीजिए कोई आदमी। इसका कोई दावा आज तक नहीं किया। इससे क्या साबित हुआ? इसका बनाने वाला एक खुदा है जो सामने नहीं। और आज ये साइंसदान कहेंगे अगर कि कोई चीज मटेरियल में होगा तो हम साइंस में करेंगे, मटेरियल होना चाहिए। तो ये बताइए कि जब किसी आदमी को कह दिया जाता है कि आपको शुगर है, और आपने खून चेक करा लिया और डॉक्टर ने लिख दिया शुगर है, और आप जाए कहिए शुगर दिखा दीजिए, शुगर दिखा देगा? बहुत सी चीजें साबित हो गई हैं। शुगर दिखाएगा कोई डॉक्टर है? बताइए कोई लेबोरेटरी? लेकिन हमने उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए उसने साबित कर दिया कि शुगर है। आज कहा जाए अमेरिका है, तो आप कहेंगे नहीं अमेरिका दिखाइएगा तब मानेंगे। ये तर्क चलेगा आपका? अमेरिका को लोगों ने तहकीक करके साबित कर दिया किसी सरजमीन पर अमेरिका है, तो हम सब लोग देखते हैं तब मानते हैं क्या? बताइए, मानते हैं क्या? हमने सुन लिया तो मान लिया। और ये सारी चीजें इंसानियत के लिए। और एक खुदा, क्यों एक खुदा है? हिंदू का नाक किधर है? मुसलमान का नाक किधर है? आँख किधर है? मुंह जुबान किधर है? मुसलमान का किधर है? सबका एक जैसा सूरत, पैदा होने का तरीका एक, मरने का तरीका एक, जीने का तरीका एक। हमने नफरत पाल दिया। जब वो खुदा तमाम को पैदा करता है तो हम नफरत करने वाले कौन हैं? बताइए। जब अल्लाह के रसूल को कहा गया मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम इंसानों के लिए रहमत, तो हिंदू मुसलमान का तफरीक करने वाले हम कौन होते हैं? है कोई करने वाला नहीं है, हमारा भाई है। वो अल्लाह समझे कौन क्या मानता है नहीं मानता है, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। और कहीं कुरान में देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कहता हम तमाम आलम के रब हैं। कहाँ कहता? रब्बुल मुस्लिमीन, आप ही कहते हैं आप ही का रब है? कहता है क्या? अल्लाह कहता है कि हम रब्बुल आलमीन हैं, हम रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो हमें नफरत निकालना है, हमें मोहब्बत बांटनी है, हमें दिल में मदरसे खास तौर से। आप जब इस तरह मिलने लगेगा अपने भाइयों से, इस मुल्क में हमारी आबादी 15 से 20% है। 1 अरब 35 करोड़ आबादी में 25-30 करोड़ हमारी आबादी है, और हम अगर इनसे नफरत करके कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, उन्होंने यहूदियों से, ईसाइयों से समझौता किया, मुशरिकीन से किया, और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कच्ची रियासत बनाने की कोशिश की। इसीलिए मैं इस मजमे से और इस असातिज़ा किराम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लौटेंगे कि नई जहनियत लेकर, नई सोच लेकर, मोहब्बत और अखवत लेकर, और ये फोकल टीचर ट्रेनिंग में जो आए हैं, जो पैगाम मिलता है बच्चों तक, आवाम तक, लोगों तक, अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाकर एक अच्छा मुआशरा बनाना है, लोगों को तकालीफ से बचाना है, ये फ्लड से और आग से और जितने जलजले आते हैं, मुख्तलिफ जितने भी अल्लाह की तरफ से जो भी आफात आते हैं, उससे लोगों को बचाना है और अपने बचना है। ये पैगाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। और स्टेट के नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने जो सोच रखी है एक अच्छा मुआशरा, एक पीसफुल मुआशरा बनाने का, 170 साल तारीख में कभी कोई ऐसा स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ
जो इस मुल्क में, इस शहर में अमन कायम की बात किया हो, तमाम की एक साथ तरक्की के मौके फराहम किए हों। आप नीतीश कुमार के लीडरशिप में आप ट्रेनिंग में आए। आज मदरसा बोर्ड कहाँ से कहाँ चला गया। और वज़ीर आला बिहार ने मदरसा बोर्ड के 100 साल तारीख में किराए में था, उन्होंने मजरूल्लाह यूनिवर्सिटी में ये 1-2 फ्लोर दिया है। बहुत जल्द मदरसा बोर्ड वहाँ शिफ्ट कर जाए। इसीलिए इन चीज़ों से फायदा उठाइए, जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, एस्थेटिक मत बने रहिए। और जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके मेहनतों को ज़ाया नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेक अजरों को ज़ाया नहीं करता है। आज नीतीश जी कैसे 15 साल रह गए, 16 साल लगातार वज़ीर आला रह गए। क्यों रह गए? इसलिए रह गए कि उनकी सोच तमाम के लिए है। अगर वो सिर्फ चंद फिरकों के लिए, चंद लोगों के लिए रखते तो नहीं रह सकते थे। इसलिए हमें सब के लिए सोचना है, सबकी भलाई की काम सोचना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उस पर अमल करके मोहब्बत का, भाईचारगी का माहौल पैदा करना है। इकबाल के इस शेर के साथ, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज़ से। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।